Okay, so now we have to start discussing what about the tendon transfers. Where do we need to do the tendon? Like we could say that what are the indications of tendon transfers, and what is the preoperative and the postoperative management of the tendon transfer. So first of all, we should know that what is tendon transfer. So tendon transfer, you can say that it is a surgical procedure. जैसा कि the name suggests that it is a surgical procedure. Now the tendon transfer, so it means that it is a transference of a tendon from one position or one location to the another location, or you can say that it is a moving the insertion of a tendon to the insertion point of a tendon, because the tendon, at the insertion point it is only the tendon. At the origin it is a muscle. The muscle originates and the tendon insert. So you can say that when you are talking about the tendon transfer, you have to move the insertion point. So it is moving the insertion of a tendon or muscle unit from one point to another, or one location to the another location. Okay, definition clear? So it can be said that it is a surgical procedure that involves the movement of the tendon from its insertion point from one location to another location in order to prevent deformity, in order to prevent dislocations, or to correct dislocations, or to correct deformities, or to prevent contractures. So these are the possible cases in which the tendon transfer has to be done. Now the tendon transfer, so the tendon transfer, that transfer should not जैसे कि whenever the tendon transfer has been done, it should not create any significant deformity in further. Rather, it should be done. It should be indicated when a deformity has occurred, or when your aim is to prevent the deformity. So in order to prevent that deformity or the contractures or any kind of dislocations, we are doing the tendon transfer. Not exactly we are, but the surgeon will do the tendon transfer in you can say that in as a case of nerve repair. So it is a case of nerve repair where the transfer has been done. So what the tendon unit, what all the muscle tendon unit, what should have the following principles? It should have the following principle, like the correction of the contracture. The first principle is contracture should be corrected. The tendon which has to be transmitted, it should have the adequate strength. ऐसा नहीं है कि आपने कोई weak tendon को ही transfer कर देना है. The tendon which has to be transferred from one location to the other location, it should have the adequate strength, so that at the new location it can also do the required work, required action. Then you can say that the next principle is amplitude of motion. What is the required range of motion available for that? Then there should be a particular function for every tendon. ऐसा नहीं है कि आपने एक टेंडन को फॉर एग्जांपल यहाँ से उठाकर यहाँ लगाया है, कोई भी आपने टेंडन को मूव किया है, तो उसका जो फंक्शन होगा एक टेंडन का, वो एक ही तरह का फंक्शन करेगा, वो अलग अलग तरह के फंक्शन नहीं कर सकता. तो एक मसल, एक टेंडन जो है वो एक ही फंक्शन करता है. Then timing of the tendon transfer. Thus, there are other functions also, like you can say that the synergism. And synergism means it is easier to retrain the synergistic pattern of the muscle. Easier to retrain the synergistic pattern of the muscle, क्योंकि उसके जो आसपास की जो हमारी muscles हैं, that should be capable enough to produce the adequate movement. The expendable donor, that the use of muscle must not result in an acceptable functional loss. Then there should be tissue equilibrium, that is no transfer should be done unless tissue is in optimal condition. Okay, so these are some of the principles for the tendon transfer. You can easily find in any case
although I have already uploaded the files for tendon transfer in your Microsoft Teams files. अब अपनी इसमें जो Teams है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने उसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके Microsoft Teams के files ऑप्शन में, you can find over there. Now what you can say that a team approach is required for the pre-operative as well as post-operative success. Now the pre-operative factors by the team, क्या हमारे जो team members हैं उनके pre-operative factors क्या हो सकते हैं? That is include the psychosocial issues, the status of the neural recovery, then comes your musculoskeletal. You can say that how the body should be ready for the muscles and the bones are ready for the tendon transfer. You can say that the musculoskeletal readiness should be there. Then their degree of the sensory system. Then the motor learning aptitude should be there, and the functional requirements. So these are the pre-operative factors where team should look into what all the psychosocial status of the patient is there, what is the status of the neural recovery, how much the nerve has been recovered, what is the status of the musculoskeletal system, whether the muscle is ready to be transferred or not, it should have the particular strength or not. What about the sensations, what is the motor learning, how the patient should be capable of, क्योंकि अभी हम एक टेंडन को, फॉर एग्जांपल हमने फ्लेक्सर की टेंडन को उठाकर एक्सटेंशन की पोजीशन पे लगाया है, तो जो अभी तक मसल क्या काम कर रही थी, फ्लेक्शन का काम कर रही थी, नाउ वी हैव प्लेस्ड द टेंडन टू डू अ फंक्शन ऑफ द एक्सटेंशन. सो the patient should have a motor learning aptitude so that whenever we will try to stimulate that tendon, that muscle which is which was previously working for the flexion, now it is supposed to work for the extension, so it has the capability to learn a new action. So the preoperative therapy may be required. What are the preoperative measures which can be done to maintain or to increase the strength of the muscle? Obviously, then first हमारा क्या काम है, स्ट्रेंथ को, जो हमारी मसल की जिस टेंडन को हमें ट्रांसफर करना है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहे या हम उसको स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें. देन टू मैक्सिमाइज द रेंज ऑफ मोशन, हमें उसकी रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमाइज करके रखना है, पैसिवली भी और एक्टिवली भी. टू करेक्ट द जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड टू प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग व्हाट ऑल द पोस्ट ऑपरेटिव, जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है पोस्ट ऑपरेटिव, उसके लिए वो पहले से ही हम उसको एजुकेशन देके रखेंगे कि ओके ये हमारी आपकी रेस्ट्रिक्शंस होंगी. रेस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं कि सर्जरी के बाद द टेंडन व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड, अभी पहले जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था वो नहीं होगा, दूसरी तरफ के लिए हमें मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कराना है. सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट, दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन ओवर हियर. समवेयर इट इज रेस्ट्रिक्शन, समवेयर इट इज रिक्वायरमेंट. सो वी हैव टू प्रोवाइड सम एजुकेशन टू द पेशेंट what all is the goal and aim and objective of the particular tendon transfer. So the therapy the physiotherapy should have a three phases: the phase of immobilization, activation of the transfer, and the strengthening of to the function or return to the function. So the therapy has three phases. The first one is immobilization phase, then activation of the transfer, and the third is the return or strengthening to the function. We'll discuss one by one later on. First, the other thing is that you should have also advise the patient a splint or an orthosis, that is custom fabricated orthosis. Now whatever tendon transfer the surgical procedure has been done, or according to the patient clinical features, clinical presentation, that will help you out to where to place the orthosis. कहाँ पे आपको place करना है, exact positioning क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि जो सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है उसकी क्या स्पेसिफिसिटीज हैं, वो कहाँ पे इंसिजन कहाँ पे लगाया गया है,
टेंडन को कहाँ से कहाँ पे टर्न किया गया है या ट्रांसफर किया गया है, पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑर्थोसिस को लगाते हैं या एडवाइस करते हैं. Now the orthosis is fabricated with the joint affected by the transfer. अब जो जनरली हम जो ऑर्थोसिस को बनाते हैं या एडवाइस जो करते हैं, जो भी जॉइंट टेंडन ट्रांसफर से अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमने फ्लेक्सर टेंडन को उठाकर एक्सटेंसर टेंडन पे लगा दिया, तो हमारा रिस्ट जॉइंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे. तो हमें जो ऑर्थोसिस लगाना है वो इस तरह से पोजीशन करना है कि जो रेस्टिंग टेंशन है ट्रांसफर के टाइम पे वो मेंटेन रहे, उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है रेस्टिंग टेंशन को ट्रांसफर की. तो इसीलिए ऑर्थोसिस को हम जो जॉइंट जो हमारा अफेक्ट हुआ है उसकी जो रेस्टिंग टेंशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है. देन व्हाट इज द स्पेसिफिसिटीज ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स, हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पोजीशन रिक्वायरमेंट क्या है. अगेन वो आपके जो आपके ऑर्थोसिस है उनकी मॉडिफिकेशन में, उनकी मॉनिटरिंग में आपको हेल्प मिलेगी. सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. नाउ द प्री ऑपरेटिव केयर, टेंडन ट्रांसफर जो भी हम इमीडिएटली कोई भी हम ट्रोमेटिक इंजरी हुआ, कोई भी पेरिफेरल नर्व इंजरी हुआ, उसकी वजह से ट्रॉमा की वजह से कोई भी नर्व कट हो गई है, डैमेज हो गई है, तो टेंडन ट्रांसफर हम इमीडिएटली करते हैं. तो इसके लिए जो है सर्जन ने आपको टेंडन ट्रांसफर के लिए बता दिया कि इसको रिहैबिलिटेशन करना है क्योंकि इसकी नर्व इंजरी हो रखी है. तो एक प्री ऑपरेटिव टीम हम जो होगी वो असेसमेंट करेगी प्रॉपरली दैट ओके दिस जो वो टेंडन है वो बता दिया जाएगा कि ओके दिस टेंडन हैज टू बी रीलोकेटेड टू अ न्यू पोजीशन, कि अपने फ्लेक्सर टेंडन को उठाकर एक्सटेंसर टेंडन पे लगाना है, एक्सटेंशन पोजीशन पे लगाना है, नहीं लोकेशन एक्सटेंशन है. सो व्हाट यू नीड टू हैव टू डू, अभी उसको ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस को उठाया है और उसी को आप जो है वो उसको एक्सटेंशन का रोल सिखा रहे हैं प्री ऑपरेटिवली, ऐसा नहीं है. आपने उसको ही जो डोनर मसल है हमारी उसी में ही स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना है, जितना हो सके उसकी स्ट्रेंथ को अचीव कीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी अचीव होनी चाहिए. पूरा पैसिव रेंज ऑफ मोशन, पूरा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन अगर हो सके जितना हो सके उतना वो अचीव होना चाहिए. साथ साथ में जो एंटागोनिस्टिक मसल है उसकी भी स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए. ठीक है. यस. देन उसके अलावा जो भी स्कार्स हैं, जो एडिमा है, जो एडिशंस है या कोई भी ऐसी मसल टाइटनेस है उसको आपको मिनिमाइज करके रखना है, मतलब कि कम से कम वहां पे स्कार टिश्यूज, एडिमा फॉर्मेशन, एडिशन जो है वो सबसे कम बने. तो आपको वहां पे प्रॉपर जेल के लिए या फिर आपको टेपिंग करनी है या आपको कुछ भी ऐसे मेथड जो यूज करने हैं सो दैट द मसल टाइटनेस विल बी रिजॉल्व्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. एडेशन जो है वो कम से कम हो, स्कार टिश्यू वहां पे कम से कम हो, एडिमा कम से कम हो. सो यू ऑल हैव टू टेक केयर कि इसके लिए भी हमें प्री ऑपरेटिवली पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा. देन कंप्लीट इवैल्यूएशन शुड बी डन in the form of sensory evaluation. आपको पूरा सेंसरी इवैल्यूएशन करना है, फंक्शनल असेसमेंट करना है, रेंज ऑफ मोशन मेजरमेंट करना है, स्ट्रेंथ टेस्टिंग करनी है, और ये सब चीजें आपको प्री ऑपरेटिवली ही करनी है, पहले से ही तैयार करके रखनी है, क्योंकि ये हमारा सेंसरी एग्जामिनेशन है, ये हमारा मोटर एग्जामिनेशन है. दिस इज द फंक्शनल एग्जामिनेशन, रेंज ऑफ मोशन एग्जामिनेशन हो गया, स्ट्रेंथ टेस्टिंग हो गया. all these things have to be tested prior to or your operation or the surgery. ठीक है. देन यू शुड ऑल्सो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एजुकेट करना है पेशेंट को कि क्या क्या आपका थेरेपी का प्रोसेस क्या है, स्प्लिंटिंग क्या होगी, पोस्ट ऑपरेटिव एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए. आपको सर्जन से भी बात करनी चाहिए कि व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी का क्या शेड्यूल होगा, और ये सब चीजें आपको सर्जन से भी कम्युनिकेट करना चाहिए. समझ आई इतनी बात? यस मैम. सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताए थे कि प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में यू शुड हैव
evaluation of the psychosocial issues, the status of the neural recovery, musculoskeletal readiness, degree of sensibility and the motor learning aptitude. तो फर्स्ट आता है हमारा साइकोसोशल इश्यूज. तो द साइकोसोशल इश्यूज मींस कि हमें, क्योंकि हम कर तो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन रहे हैं, लेकिन हमें पोस्ट ऑपरेटिवली जो है ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट का कॉग्निशन कितना मेंटेन रहता है. तो पहले से ही आप उसकी जो इंटरेस्ट है, जो उसकी एबिलिटीज है, जो उसका क्लाइंट को आपको मोटिवेशन करना है, उसका कोऑपरेशन गेन करना है, उसका पूरा जो अटेंशन है वो आपके थेरेपी पे रहे, आपकी फिजियोथेरेपी पे रहे. तो ये सब चीजें जो है आपको पहले से ही उसको इतना उसका कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, सो दैट द पेशेंट विल गिव हिज और हर 100% टू यू. कोऑपरेशन जो है वो अपना पूरा 100% दे ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आल्सो. ठीक है. कॉग्निटिव स्क्रीनिंग आप कर सकते हो पेशेंट की कि उसका क्या सोचता है, क्या समझता है उसके बारे में. जो भी अगर आप उसका अपर लिम इन्वॉल्व है या लोअर लिम इन्वॉल्व है तो उसके लिए आप उसकी डिसेबिलिटी के लिए कोई क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हो, जैसे कि उसका पूरा उसकी कॉग्निशन का लेवल या कुछ भी ऐसी चीजें जो है पता चल सके. देन यू कैन ऑल्सो you can also get जो पार्टिसिपेशन है रिकॉर्ड आप उसको मेंटेन करके रख सकते हो, उसका कंप्लायंस दे सकते हो फ्यूचर मोटिवेशन के लिए, कंप्लायंस के लिए. तो अगर पुअर कंप्लायंस होगा दैट विल डिमिनिश द सक्सेस ऑफ द टेंडन ट्रांसफर सर्जरी. पुअर कंप्लायंस की वजह से जो टेंडन ट्रांसफर सर्जरी है उसका सक्सेस जो है वो कम हो जाएगा. और किसकी वजह से हो सकता है? डिनायल की वजह से. कि वो उनका पहला साइकोसोशल इश्यूज क्या हो सकता है? डिनायल. दैट मींस मेनी इंडिविजुअल बिलीव दैट कि बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि सिचुएशन जो है अपने आप ही ठीक हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है उनके सर्जरी कराने की. कि उनको ये लगता है कि दूसरा लिम्ब तो चल ही रहा है ना, तो इसको सर्जरी कराने की जरूरत ही क्या है. तो दैट इज डिनायल. वो चाहते ही नहीं कि सर्जरी हो. दूसरा फ्रस्ट्रेशन. उनको लगता है कि वो उसके बहुत सारी सेक्रीफाइसेस मान लीजिए किए हैं उसने कि हाँ भाई मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है, वो मेरे को डिपेंडेंट बना रही, मैं उनको ऊपर डिपेंडेंट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी पूरी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. सो दैट इज अगेन अ साइकोसोशल इश्यूज एंड दैट इज आल्सो रिजल्ट इन पुअर कंप्लायंस फॉर द सक्सेस. देन लैक ऑफ ट्रस्ट. इफ you are not able to get the confidence or the faith or the trust of the patient for your management, for your therapy. So उसको विश्वास ही नहीं है, उसको बिलीव ही नहीं है, उसको फेथ ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं है उसको आपके ऊपर कि दैट फिजियोथेरेपी से भी कुछ हेल्प मिलेगी. So that is also again a psychosocial status. Sometimes the finances can affect the patient poor compliance. कि थेरेपी विजिट जो होती है वो कॉस्टली हो सकती हैं, travel expenses हो सकते हैं. So these are also can be a part of these issues. Then time, probably कोई अगर लोअर लिम्ब का इन्फेक्शन है या किसी भी ऐसी नर्व इंजरी का है जिसमें कि उसको दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है. तो घर में कोई और नहीं है उसको लाने ले जाने के लिए या फिर थेरेपी सेंटर तक छोड़ने के लिए. So उसकी वजह से भी it will limit the availability of the patient to the therapist. So that is the psychosocial issues that includes denial हो गया, frustration हो गया आपका, then your finances हो गए, then your lack of faith हो गया, trust हो गया या finance time हो गया. So these are the pre-operative evaluation जो आपको करना है. Then आता है हमारा status of the neural recovery. टेंडन ट्रांसफर से पहले आप जो थेरेपिस्ट है उसको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि रीइनर्वेशन जब होगा, द अपॉर्चुनिटी फॉर रीइनर्वेशन हैज पास्ड और रिकवरी जो है वो अब एक फेज पर मतलब वो हो गई है, क्या कहते हैं उसे, सेम है. रिकवरी जो है वो जैसे कि अगर आप मान लीजिए हम कहें कि रिपीटेड असेसमेंट हम मसल स्ट्रेंथ का कर रहे हैं या डेक्सटेरिटी का कर रहे हैं या कोऑर्डिनेशन का कर रहे हैं, तो हमें जो है वो एक ग्रेजुअल स्लोइंग इन प्रोग्रेस मिलेगा और कुछ दिनों बाद जो है हमें कुछ मंथ बाद वो प्रोग्रेस नहीं मिलेगा. अगर हम कोई भी चीज हम देख रहे हैं कि टेंडन ट्रांसफर से पहले, हमें टेंडन ट्रांसफर से पहले क्या देखना है, हमें स्टेटस देखना है न्यूरल रिकवरी का. तो न्यूरल रिकवरी का मतलब क्या है कि अगर पेशेंट की
कोई भी जैसे कि मैंने आपको जब पीएनआई पढ़ाया था तो उस टाइम पे भी बताया था कि नर्व का कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि रीजनरेशन हो रही है नहीं हो रही है? या तो आप जो है उसकी पूरी नर्व टेस्टिंग करें, और इधर कि जब पेशेंट आपके पास आया है, आपने देखा कि ठीक है कुछ टाइम तक तो उसकी प्रोग्रेशन हुई, फिर वो स्लो होती गई और फिर वो रुक गई, बिल्कुल उसमें प्लेट्यू फेज आ गया, कोई ना तो रिकवरी हो रही है, ना वो डाउन जा रहा है, ना वो अप जा रहा है, दैट इज अ प्लेट्यू फेज हैज अकर्ड, दैट मींस कि कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रही है। देन उसके इसके अलावा भी आप जो है उसमें कुछ, तो दैट इज द स्टेटस ऑफ द न्यूरल रिकवरी कि नहीं हुआ, उसके बाद उसमें कोई कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उससे कोई काम नहीं हो रहा है। इस चीज को भी आप जो है उसके लिए आप उसको न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन देकर देख सकते हैं कि अपने पेशेंट को एफर्ट लगाने के लिए बोला और फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के बाद देखा, तो हो सकता है कि उसके बाद उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप जो है वो ईएमजी के थ्रू देख सकते हो या नर्व कनेक्शन स्टडीज के थ्रू आप उसको डायग्नोज कर सकते हो कि कितना नर्व का रिकवरी हुई है या नहीं हुई है। सो दीज आर ऑल कैन वेरीफाई कि कितना प्लेट्यू फेज आया है रिकवरी में, सो दैट कैन बी इवेल्युएटेड। Then what is the musculoskeletal readiness? That means what is the available range of motion, what is the muscle strength of the tendon which has to be transferred. So then you can also assess the coordination, assess the fine motor function, that is called as dexterity. You can also assess the function of the limb. Okay, so these are all the मस्कुलोस्केलेटल रेडीनेस। आप इसमें रेंज ऑफ मोशन में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों देख सकते हैं। इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी का, देखिए ये प्री ऑपरेटिव है तो बिफोर सर्जरी आप देखेंगे कि क्या उसका एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, क्या पैसिव रेंज ऑफ मोशन है, उसको आप मेजर कर सकते हैं गोनियोमीटर के साथ और नोट डाउन कर लीजिए उसको। एंड सेम वे मसल स्ट्रेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, मसल असेसमेंट कर सकते, सॉरी स्ट्रेंथ असेसमेंट कर सकते हैं। तो जनरली हम एमएमटी के थ्रू कर सकते हैं या फिर हैंड हेल्ड डायनोमीटर के थ्रू भी कर सकते हैं उसको, तो उसमें भी आप जो है ये डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है बिफोर सर्जरी। जनरली अगर हम देखें तो 4 to 5 जो है वो हमारा एमएमटी में होना चाहिए, जिस टेंडन को ट्रांसफर करना है उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 4 एमएमटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। Then you can also go for the functional test or the fine motor skill testing आप कर सकते हो। तो ये भी चीजें आपको जो है उसकी कितना वो पेशेंट का प्रिसीजन कैसा है, प्रीहेंशन कैसा है, ये भी आप चेक कर सकते हो। देन सेंसरी टेस्टिंग कर सकते हो, सेंसिबिलिटी दैट इज डिग्री ऑफ सेंसिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आप चाहें तो जो हमारे टच प्रेशर और डिस्क्रिमिनेशन है ये हम चेक करते हैं स्पेशली, तो उसके लिए कोई भी आप जो हमारे जनरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। इसके अदर देन दिस जो जनरल ऑब्जेक्ट्स है, टच के लिए आपने कॉटन यूज कर लिया, प्रेशर के लिए आपने अगेन कॉटन स्वैब या फिर पेन का जो पीछे वाला जो ब्रॉड एरिया होता है उससे आप प्रेशर चेक कर सकते हो। So these are the general traditional objects which can be used to check the sensibility of the patient. Other than this, you can also use the monofilaments. Monofilaments आते हैं, that is known as Siemens-Weinstein monofilament. Siemens, S-E-M-M-E-S. Siemens-Weinstein, W-E-I-N-S-T-E-I-N. Siemens-Weinstein monofilaments. उनको भी हम यूज कर सकते हैं to examine the pressure sensitivity और the touch को भी चेक करने के लिए, प्रेशर को भी चेक करने के लिए। Then 2-point discrimination हम यूज कर सकते हैं, with the help of esthesiometer हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम टच, प्रेशर और डिस्क्रिमिनेशन हम चेक कर सकते हैं। Then comes the motor learning aptitude. So जिस भी मसल टेंडन यूनिट को हमें एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट किसको करना है, जिस टेंडन को हमें ट्रांसफर करना है, वो आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिवली दैट शुड बी एक्टिवेटेड, जैसे कि वो नई कंट्रोल स्ट्रेटजीज को समझ सके। सो द प्री ऑपरेटिव लर्निंग एबिलिटीज है दैट कैन बी मेजर्ड
एट 4 लेवल, 4 लेवल हैं उसके प्री ऑपरेटिवली मोटर लर्निंग एबिलिटी के लिए. द फर्स्ट वन इज एक्विजिशन, देन इज रिटेंशन, देन इज ट्रांसफर एंड देन इज एफिशिएंसी. सो ये जो चीजें हैं आपकी, इनके थ्रू आप, द फर्स्ट वन इज एक्विजिशन, रिटेंशन, ट्रांसफर, और यू कैन से द फ्लेक्सिबिलिटी और द एफिशिएंसी. So that is acquisition of a skill. Acquisition means कि कोई भी नई चीज सीखना, कोई नया काम सीखना, that is acquisition of a skill. Retention means consistency. कोई भी जब हमने स्किल को, जब कोई स्किल जो है वो बहुत लंबे टाइम तक, आफ्टर शॉर्ट और लॉन्ग टाइम डिले, हम उसको, हमारे अंदर वो लर्नड एक्टिविटी है या नहीं है, दैट मीन्स कि हमने पहले सीखा, उसको अपनाया. कि हम जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग है, हमने बचपन में लिखना सीखा, अगर हम कुछ टाइम बाद, मतलब फॉर एग्जांपल हमने 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी हम उसको, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम लिख सकें, दैट इज रिटेंशन. नेक्स्ट, ट्रांसफर और फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सिमिलर स्किल और स्लाइट वेरिएशन. कि अब आपने रिटेंशन चेक कर लिया कि कंसिस्टेंसी है या नहीं, आप राइटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते. देन इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपने कुछ टाइम बाद ये देखा कि क्या वो सेम एक्टिविटी हम उसी स्किल के साथ कर पा रहे हैं, क्या हमारी राइटिंग सेम आ रही है, या हो सकता है कि कुछ वेरिएशन हो राइटिंग में, क्योंकि हमने 1 साल से राइटिंग ही नहीं करी है, हमारे हाथ में दर्द हो रहा था या चोट लगी हुई थी, नहीं कर पाए हम, 6 महीने हो गए हमने लिखा नहीं है. तो क्या हमारी राइटिंग सेम आ रही है या कुछ वेरिएशन आ रहे हैं उसके अंदर. ठीक है. एंड लास्ट इज योर एफिशिएंसी, दैट मीन्स कि एबिलिटी टू मिनिमाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग टास्क परफॉर्मेंस. एफिशिएंसी क्या कहता है कि जब भी आप कोई काम करें तो उस टाइम पे एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो कम से कम होना चाहिए. कोई भी काम करते समय, फाइन मोटर एक्टिविटीज करते समय भी वो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम से कम हो. दैट मीन्स योर एफिशिएंट मूवमेंट हैज बीन टेकन प्लेस. सो ये जो हमारा मोटर लर्निंग एप्टीट्यूड है, ये हमारा असेस होना चाहिए आपका इन्वॉल्व लिम्ब पे भी और नॉन इन्वॉल्व लिम्ब पे भी. ठीक है. सो इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस. कोई आपने नया काम दिया पेशेंट को करने के लिए, उसके लिए आप इन्वॉल्व लिम्ब पे भी चेक कीजिए और नॉन इन्वॉल्व लिम्ब पे भी चेक कीजिए. कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 10 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को किसी एक सीक्वेंस में लगाए. ठीक है, एक कंटेनर के अंदर उसको 10 छोटे ऑब्जेक्ट जो है सीक्वेंसिंग में लगाने. तो दैट इज द एक्विजिशन. अब रिटेंशन के लिए आपको क्या करना है कि पेशेंट की उसी कुछ टाइम के बाद उसको बोला दोबारा से उसी सीक्वेंस में रिपीट करने के लिए, क्या वो सेम ऑर्डर में लगाता है नहीं लगाता. अब आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देना. एक्विजिशन में पहले आपने उसको बता दिया कि ओके 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 7 आएगा, समथिंग लाइक दैट. एक आपने ऑर्डर बता दिया उसको कि इसी सीक्वेंस में लगाना है. कुछ टाइम के बाद रिटेंशन चेक करने के लिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपने उसको उसी ऑर्डर उसी सीक्वेंस में रिपीट करने के लिए बोला. नाउ the next is flexibility or the transfer. कि क्या जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, that could be asked to place the object in reverse order without previous review. अब उसको देखना है कि क्या वो रिवर्स ऑर्डर में लगा सकता है, पहले वाला देखे बिना. क्या वो रिवर्स ऑर्डर, पहले हमने उसको 1 to 10 लगाने की बोला था, क्या वो 10 to 1 लगा सकता है. और फाइनली हमें उससे क्या देखना है, टाइमिंग देखनी है, एफिशिएंसी देखने के लिए कितने टाइम में उसने वो वर्क किया. दैट इज द मोटर लर्निंग एप्टीट्यूड. समझ आया इतना? Yes, ma'am. Yes, now Yes, ma'am. Okay. I'm taking your attendance right now because your class has been over. Just जल्दी मुझे अटेंडेंस दे दीजिए अपनी. आप लोग कितने लोग आए क्लास में? 38. फटाफट जो लोग नहीं आए प्लीज बोलते रहेगा कि एब्सेंट है, सो दैट कि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का भी. ओके, अलीशा, अफजल, प्रेजेंट मैम. ओके, देन आकांक्षा, Present, ma'am. अदिति, डिम्पल, दीक्षा, दीपशिका. Present, ma'am. Deepshika. ओके, गुंजन,
Arlene, Hina. Present, ma'am. Hina. Okay. Harshit, Ishan, Present, ma'am. Ishan. Ipshita, Present, ma'am. Ipshita. Ishani, Jatin, Present, ma'am. Jasmine. Present, ma'am. ओके जैस्मिन, जतिन तुम्हारी भी लग गई है। कनिका, Kanika. Present, ma'am. ओके। खुशनुमा, खुशबू, Present, ma'am. Khushbu. ओके। कृतिका, ललिता, मेहर, Present, ma'am. ओके। मुस्कान, महक, Yes, ma'am. ओके। मयूरी, मोक्षित, महक, Present, ma'am. ओके। नवाज, नैन्सी, Present, ma'am. Nancy. ओके। नविता, Present, ma'am. Navita. ओके। Ma'am, पूर्वय, Mayuri. Present. ओके। पूर्वय, प्रभजीत, Present, ma'am. Prabjeet. प्रभजोत, रॉबिन, रोहन, रिया, रिया बंसल, Present, ma'am. Riya Bansal. ओके। रुपिन, Present, ma'am. ओके। रंजना, Present, ma'am. रिया गुप्ता, रोहित, Ma'am. ओके। शिवांगी, Shivangi. Present, ma'am. श्रुति, Present, ma'am. सिमरन सैनी, स्नेहा, Present, ma'am. Sneha. ओके। स्वाति, Present, ma'am. Swati. ओके। सान्या, सान्या, संध्या, सिमरन चावला, Yes, ma'am. Present, Simran Chawla. ओके। विभा, Present, ma'am. Vibha. ओके। विभा चावला, Present, ma'am. Vibha Chawla. युवराज, युवराज, किनले, इमदादुल्लाह, लीलावती, वरुण, अंजू, Present, ma'am. Anju. ओके। चंचल, Present, ma'am. Chanchal. ओके। अंकिता, Present, ma'am. Ankita. विश्वजीत, Present, ma'am. Vishwajit. ओके। दीपिका, Present, ma'am. Deepika. ओके। अमनदीप, ललित कुमार, Present, ma'am. Lalit Kumar. कृतिका कौशिक, Present, ma'am. Kritika Kaushik. सिंधु, Present, ma'am. Sindhu. सौरभ ठाकुर, Present, ma'am. Saurav Thakur. कपिल कपूर, Present, ma'am. Kapil. ओके। अनीशा, ललित कुमार, Present, ma'am. Lalit. नितिन बंसल, Yes, ma'am. उर्वशी, Present, ma'am. मलिहा, Present, ma'am. Maliha. रिंकू, Present, ma'am. ललित नारायण, निस्बा, काजल, रिया, Present, ma'am. विकास कुमार, विकास, रोहित, ओके। एनीबॉडी एल्स जो रह गया हो अटेंडेंस? Ma'am, roll number 53 present. एक एक करके बोलो। Ma'am, roll number 53, रोल नंबर ma'am. 53 रॉबिन, Number 12. Yes, ma'am. रोल नंबर 12, ओके। एनीबॉडी एल्स? Ma'am, roll number 85.
85. Lilavati, okay? Okay, now I'm downloading your attendance. Okay, I have downloaded it. You can leave the meeting. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.